Welcome Balak and Balika. Today's topic is Gaussian surface. The Gaussian surface around a charge distribution is a closed surface such that the electric field intensity at all points on the surface is same and electric flux is perpendicular through the surface. So this is the definition part. Now let us understand what this says. The key points are electric field intensity is same at all points and electric flux is perpendicular through the surface. These two are the key points of Gaussian surface. Now let us first see what do we actually mean by a Gaussian surface. We will consider different situations for this. अगर हमारे पास कोई पॉइंट चार्ज है, लेट्स बी अ पॉइंट चार्ज Q, हम जानते हैं कि इस पॉइंट चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगे हमारे पास वो कुछ इस तरह के होंगे. दीज आर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर अ पॉजिटिव चार्ज. इफ सपोज this is at a distance of r. Okay, now we all know that the formula for electric field due to a point charge is given by E is equal to 1 by 4 pi epsilon naught q by r square. Now you can see that 1 by 4 pi epsilon naught is constant. If charge is kept constant, in that case electric field is inversely proportional to r square. So our task is, we can see that electric field only depends upon distance r. So if r is same for all these situations, hence the electric field at these points will also be same. Okay, since the value of r is same for all these situations, the value of electric field is also same. Hence, if we draw a surface for this, we will get a sphere. Okay, so for a point charge, the Gaussian surface is given by a sphere, and you can very well see that the electric field lines are passing perpendicular. We are passing perpendicular through the surface. As the definition says, the value of electric field intensity must be same. Also, the electric flux must be perpendicular through the surface. So this is the situation. For a point charge, the Gaussian surface is given by a sphere. If the distribution of charge is a line charge, in that case what we say is, at every distance, that is at a distance r, we will have the value of electric field to be same at all points. Okay, the value of electric field at all points along the line charge looks like, see, in this case the equidistant points are somewhere here, and if we join these, we will receive circular disc, or we'll have these circular discs joined in form of a cylinder. You can clearly visualize that अगर ये पॉइंट, अगर ये हमारा लाइन चार्ज है, इन दैट केस हर एक जो डिस्टेंस आर हम ले रहे हैं वो कुछ ऐसा होने वाला है. ओके, हर एक डिस्टेंस आर में हम क्या देख पाएंगे यहाँ पे, जैसे देखते हैं इसको कुछ ऐसा, इधर कुछ फिगर हमारे पास है, इसको ज्वाइन कर ले इस तरह से हम लोग यहाँ पे. इन दैट केस व्हाट वी ऑब्जर्व इज, पकड़ नहीं पा रहा उस तरह से, लेकिन फिर भी what we observe is like this. This is a situation. So if we join this, we will observe a
circular path. Hence, for line charge distribution, the Gaussian surface is given by a cylinder. For a line charge distribution, if this is the line charge distribution marked by a red color, and at equidistant points such that at a distance r from this line we will have the electric field at each and every point to be seen. The electric field at every point is same, and if we join these points we will receive a shape of circular disc, and by joining these circular discs what we'll receive for line charge is a cylinder. Hence, for a line charge distribution, the Gaussian surface looks like a cylinder. Okay. If the distribution of charge is in form of sheets. Now, if this is the charge distribution which is in form of sheets, then at equidistant points, let that be at a distance r, what we will have is a similar surface looking like a sheet of paper. So, for a plain sheet of charge, the Gaussian surface also looks like a sheet. Okay, if this is the distribution of charge, then this is the Gaussian surface. But we'll see that the electric field lines or the flux through the surface is also perpendicular. The electric field at all points are same, and also the field lines are perpendicular through the surface. For a sheet of charge, the Gaussian surface looks like a plain sheet. Okay. Our next question is, derive Coulomb's law from Gauss theorem. This question is similar to the proof of Gauss theorem. Now let us see what is this. If we assume a point charge q1, we are assuming a point charge q1. For this charge q1, the Gaussian surface is a sphere of radius r, and on this Gaussian surface we are considering another charge q2. Clear? We have a point charge q1, and for this charge q1, this is the Gaussian surface at a distance r, and q2 is placed at point P on the Gaussian surface. Same figure. And on this Gaussian surface, we have considered a small elementary area ds. प्रूविंग पार्ट पे आते हैं हम लोग यहाँ पे. एक्चुअली हम प्रूफ क्या कहना पहले वो समझ लें. हमें प्रूफ करना है क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाय r स्क्वायर. ये प्रूफ करें तो भी कूलम्स लॉ ही प्रूफ होता है, लेकिन बेटर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ इज हमें प्रूफ करना है F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 बाय r स्क्वायर. ओके, हमें ये चीज प्रूफ करना है. तो बेसिकली इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या यूज करें, पहले से स्टेटमेंट पार्ट हम लिख लेंगे, जो कि लिखना जरूरी होता है किसी भी क्वेश्चन के लिए. लेट अस कंसिडर 2 पॉइंट चार्जेस q1 एंड q2 सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r इन वैक्यूम. वैक्यूम इसलिए बिकॉज एप्सिलॉन का वैल्यू मीडियम पे डिपेंड करता है. अगर मीडियम वैक्यूम ना हो के कुछ और होगा तो वहाँ एप्सिलॉन नॉट ना हो के कुछ और वैल्यू होगा. फिर यानी ये जो हम यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट लिख रहे हैं, एप्सिलॉन नॉट तभी होता है जब सिस्टम वैक्यूम में हो.
अगर मीडियम चेंज होगा तो एप्सिलॉन का वैल्यू भी चेंज होता है। इस वजह से हम लिखें यहाँ पे बाय डिस्टेंस r इन वैक्यूम। लेट E बी इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस r। इलेक्ट्रिक फील्ड जो E हमारे पास किसके कारण है? चार्ज Q1 के कारण। हम यहाँ लिख पाएंगे क्या? लेट E बी इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस r ड्यू टू Q1 कह सकते हैं हम लोग। इस Q1 चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो बना है यहाँ पे वो है E। अब हम लॉरेंस फोर्स के ये जानते हैं F इक्वल टू क्यू ई। हमें लॉरेंस फोर्स का फॉर्मूला पता है, पहले भी इसको हम डिस्कस कर चुके हैं। F इज इक्वल टू होता है क्यू ई। लॉरेंस फोर्स का फॉर्मूला F इक्वल टू क्यू ई है, तो उसको हम लोग यूज कैसे कर रहे हैं? द फोर्स एक्सपीरियंस बाय Q2 ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ Q1 इज गिवन बाय लॉरेंस फोर्स इक्वल टू, जो F इक्वल टू होगा हमारे पास Q2E। ये Q2E क्यों आ रहा है हमारे पास? बिकॉज जो फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है वो चार्ज Q2 पे हो रहा है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो Q1 के कारण है। इस वजह से हम यहाँ पर लिख रहे हैं F इज इक्वल टू Q2E। ठीक है, Q2 पे फोर्स लगा है किसके कारण? इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। कि हम जानते क्या है कि किसी भी चार्ज को जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसमें फोर्स लगता है। ये हमने पहले वीडियोस में देख चुके हैं इस चीज को। कैसे? अगर मान लें कि ये कोई रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये हमारा रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इसमें कोई अगर मान ले कोई प्लस चार्ज मूव कर रहा है, अगर ये प्लस चार्ज आगे बढ़ेगा तो कहाँ जाएगा? नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होता है, पैराबोलिक पाथ लेता है आपस। ये हम पहले वीडियो में बता चुके हैं। जब भी कोई चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में आता है उस पर एक फोर्स एक्सपीरियंस होता है, यानी जब इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज आएगा तो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, और उस फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? F इक्वल टू क्यू ई। यहाँ चार्ज जो है वो Q2 है और इलेक्ट्रिक फील्ड E है, इसलिए लिखे यहाँ पे F इक्वल टू Q2E लिखे हम यहाँ पे। ठीक है, हम जानते हैं क्या अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू चार्ज या फिर अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस ऑफ Q1 इज, हम जानते हैं गॉस थ्योरम कहता है कि सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा गॉस थ्योरम है, लेकिन फिलहाल जो गॉस थ्योरम यहाँ यूज करेंगे हम लोग उसमें लिखेंगे E डॉट डी एस इक्वल टू Q1 बाय एप्सिलॉन नॉट। Q1 क्यों यहाँ पे? चार्ज यहाँ जो लिया गया अंदर में वो Q1 है, इसलिए यहाँ लिख रहे हैं Q1 बाय एप्सिलॉन नॉट। अब अगर इस डॉट पे यहां से हटाना चाहे हम लोग, इन दैट केस विल राइट E डी एस cos थीटा इक्वल टू Q1 बाय एप्सिलॉन नॉट, एंड यू ऑल नो दैट द cos थीटा, द वैल्यू ऑफ cos थीटा इज 1 बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर आर अलोंग सेम डायरेक्शन। क्योंकि ये दोनों का डायरेक्शन सेम है, इसलिए यहाँ जो इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में जो एंगल बना है वो एंगल कितना है? 0 डिग्री। हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल 0 डिग्री है, एंड वी नो cos 0 का वैल्यू कितना होता है? 1। cos 0 का वैल्यू हमारा 1 होता है। इस वजह से हम लिख पाएंगे क्या यहाँ पे? इंटीग्रेशन E डी एस cos 0 डिग्री इक्वल टू Q1 बाय एप्सिलॉन नॉट, एंड वी कैन राइट E ds is equal to Q1 by epsilon naught because the value of cos 0 is 1. So now we have to solve this equation. तो इंटीग्रेशन में करना पड़ेगा, यहाँ इंटीग्रेशन एरिया का है, सरफेस एरिया, एंड इन केस ऑफ सरफेस एरिया द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट बिकॉज गॉसियन सरफेस पे हर एक पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होता है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, यानी ये बाहर इंटीग्रेशन ऑफ ds इज इक्वल टू Q1 बाय एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ कांस्टेंट था। नाउ द सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ एरिया, इस पूरे स्फीयर का एरिया कितना होगा हमारे पास? हमें इंटीग्रेशन करना है स्फीयर का, तो इस पूरे स्फीयर का हमारा सरफेस एरिया जो है दैट इज 4 पाई r स्क्वायर।
एक स्फीयर का सरफेस एरिया 4πr² होता है। इस वजह से हम लिख रहे हैं E इंटू 4πr² इक्वल टू Q1/ε0। सो द वैल्यू ऑफ E इज 1/4πε0 Q1/r²। अगर इसको इधर लेके आएंगे हम लोग तो हमारा E का वैल्यू कुछ ऐसा आ जाने वाला है। सो वी कैन राइट दिस टू बी इक्वेशन नंबर 2। हमारा इक्वेशन 1 क्या था, F इक्वल टू Q2E, एंड इक्वेशन 2 हमारे पास कुछ ऐसा आया है। अगर इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर किया जाए देन यूजिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1 वी गेट F इज इक्वल टू Q2, E के बदले यहां पुट किया हमने 1/4πε0 Q1/r² एंड F इज इक्वल टू वी गेट 1/4πε0 Q1 Q2/r², and this is the formula for Coulomb's law. Hence we have derived Coulomb's law using Gauss theorem. Please do subscribe to our channel by hitting the bell icon. Thank you. Also do like our videos, which encourages us to make better videos. Thank you all.